lightweight multiprocessing. Multi-threading is called lightweight multiprocessing because operating system incurs less overhead. Because operating system incurs less overhead in the management of threads. Operating system incurs less overhead in the management of threads as compared to the management of processes. As compared to the management of processes. जो आप टर्म जानते हैं कि वो लाइट वेट मल्टी प्रोसेसिंग होती है, वो क्यों होती है वो हमें समझना है। यहाँ पर दिखाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम इनकर्स लेस ओवरहेड। इनकर्स का मतलब जो चीज़ आपको करनी पड़े, आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, करनी पड़े, वहाँ इनकर वर्ड का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू लोड अनदर प्रोसेस, फॉर इट नीड टू सर्च ए न्यू पेज, एक नए पेज की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर इन ऑर्डर टू लोड ए थ्रेड पेज इज नॉट रिक्वायर्ड, पेज पहले से है उसी में लोड कर लेगा। किसमें ज़्यादा हेडेक है? प्रोसेस में, थ्रेड में, प्रोसेस में। कॉन्टेक्स्ट स्विच की बात करते हैं। When control need to be transferred from this process to this, memory is divided into pages or we can say segments and offsets. यहाँ से यहाँ पर आएंगे, it means we are moving from one segment to another. यहाँ से यहाँ पर आएंगे, it means we are changing the offset. Offset means position from beginning of the page. ठीक है? अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, I need to specify the segment as well as offset. Two things need to be specified: which page, which byte. In this case, only the offset need to be specified. किसमें ज़्यादा हेडेक है? प्रोसेस में। थ्रेड का मैनेजमेंट आसान होता है as compared to the management of processes. Hence, multi-threading is called lightweight multiprocessing. इतनी बात समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट लाइन से, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी-थ्रेडिंग। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी-थ्रेडिंग is identification of independent modules. First requirement of multi-threading is the identification of independent modules in an application. Is the identification of independent modules in an application. This requirement is satisfied. This requirement is satisfied by runnable interface. This requirement is satisfied by runnable interface provided by Sun Microsystem. This requirement is satisfied by runnable interface provided by Sun Microsystem. Runnable interface. Runnable interface. Provide a method named run. Runnable interface provide a method named run that can be executed as a thread. Provide a method named run that can be executed as a thread. As a thread. Executed. Sun Microsystem has defined an interface named runnable, something like this. इस तरह से एक इंटरफेस बनाया गया है, उसमें एक मेथड डिक्लेयर किया गया है आपके लिए रन। अब हमें पहले समझना है ऐसे इंटरफेस की ज़रूरत क्या पड़ी। मैंने यहाँ दो डायग्राम बना के रखे हुए थे, मैंने एक मिटा दिया, एक नहीं मिटाया जानबूझ के। थ्रेड को हमने कैसे डिफाइन किया था? थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल ऑफ अ प्रोसेस। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आई हैव अप्लाइड ए ट्रिक, visual trick to differentiate multiple threads.
Lines are used by me to represent instructions. यहाँ पर मैंने कुछ बड़ी लाइन बनाई, कुछ छोटी लाइन बनाई, कुछ थोड़ी और बड़ी लाइन बनाई। आपको समझ आया ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। आपको पता चल गया दिस इज थ्रेड T1, दिस इज थ्रेड T2, दिस इज थ्रेड T3। अब बात करते हैं रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है, क्या उनका साइज वेरी करता है? एक इंस्ट्रक्शन 16 बिट की होगी, दूसरी 32 बिट की होगी, तीसरी 64 बिट की होगी। तो हम पता लगा लेंगे 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस अलग मॉड्यूल है, 32 बिट की इंस्ट्रक्शन अलग मॉड्यूल है, 64 बिट की इंस्ट्रक्शंस अलग मॉड्यूल है। ऐसा होता है? नो, ऑल द इंस्ट्रक्शंस हैव सेम साइज। ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी वहाँ। मैंने एक प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, उसमें 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं और those 1000 instructions can be divided, let's say, in 3 different modules. How would GRE come to know that this particular set of instruction is an independent module? How would you identify as a programmer that this set of instruction is an independent module? समझ में आ रही है प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है ये कैसे पता लगाएं कि आपकी एप्लीकेशन में कौन कौन से पार्ट इंडिपेंडेंट है। कुछ सेपरेशन होना चाहिए, कुछ डिमार्केशन होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने सेपरेशन कर दिया था लाइन छोटी बड़ी करके, तो सेपरेशन का तरीका दिया सन माइक्रोसिस्टम ने आपको एक इंटरफेस दिया गया है। उस इंटरफेस के अंदर एक रन नाम का मेथड है। सन माइक्रोसिस्टम आपसे कहता है अगर आप अपनी एप्लीकेशन में 10 थ्रेड बनाना चाहते हैं, दैट इज इफ यू वांट टू हैव 10 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स इन योर एप्लीकेशन, प्रोवाइड 10 different implementations of run method. Each run method in your application can be identified by the GRE as thread. अब आप भी देख के पहचान सकते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन में आपको दिख रहा है 10 रन मेथड है, आपको समझ में आ जाएगा these are independent modules. GRE भी क्या देखेगा? आपकी एप्लीकेशन में रन मेथड है या नहीं है। उसे रन मेथड दिखेगा तो वो अज्यूम करेगा इट इज अ थ्रेड। समझ में आई? डिमार्केशन मिल गया। So run method is used as a thread. It can be executed as a thread. It can be executed as simply a method. दोनों चीजें हैं। उसके बाद वो एक थ्रेड की तरह से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एक मेथड की तरह से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दोनों के इसमें क्या फर्क आएगा वो अभी समय के साथ आपको पता चल जाएगा। हो गया इतना? अब आगे लिखिएगा in order to manage threads, Sun Microsystem provided a class by the name thread. पूरा नाम है java.plain.thread. In order to understand multi-threading, we need to know the relation between runnable interface and thread class. क्वेश्चन लिखिएगा पहले, फिर आगे की बात करेंगे। What is the relation between runnable interface and thread class? What is the relation between runnable interface and thread class? Or what is the relation between a Java thread? What is the relation between a Java thread and objects of thread class? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेजॉरिटी को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास, टी बड़ा होता है थ्रेड क्लास। What is the relation between runnable interface and thread class, or what is the relation between Java threads and objects of thread class? मल्टी थ्रेडिंग समझनी है तो ये चीज पहले समझनी पड़ेगी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने थ्रेडिंग का कोई प्रोग्राम बनाया है, चाहे कॉलेज में ही बनाया हो, कभी बनाया है? Means you are familiar with the term thread, you are familiar with the term runnable. दोनों टर्म आप जानते हैं। कभी सोचा ये दो टर्म क्यों है आपके पास?
What is the purpose of runnable and what is the purpose of thread? Yes, no. बताना चाहेगा कोई? थ्रेड में सर स्टार्ट मेथड होता है। थ्रेड में स्टार्ट मेथड होता है। क्या करते हैं स्टार्ट मेथड का? क्यों होता है वो? पहले हमें यही समझना है कि थ्रेड क्या है, फिर हमें समझना है थ्रेड क्लास क्या है। थ्रेड अलग चीज है, थ्रेड क्लास अलग चीज है। रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा नेक्स्ट लाइन से। Following analogy describes the relation between Java threads and objects of thread class. एनालॉजी का मतलब समझते हैं? सिमिलैरिटी, कोई कहानी जो दूसरी कहानी के सिमिलर हो।